ઇન્ડિયા ટુ લંડન જઈને આ ગાડી આવી છે જ કેમ્પર વાનની આજે તમને હું વિઝિટ કરાવવા જઈ રહ્યો છું। કિચન છે, હજી એક ડ્રોર છે, મતલબ આમાં સામાન રાખવાની કોઈ જ તમારે જગ્યા ઓછી જ નથી પડવાની। જે ટર્બો લખ્યું છે તેમનું વોશરૂમ છે, ગેંડી છે, સોફા છે, બે સોફા, ડાઇનિંગ ટેબલ, આ રીતે આમ કરશે ખાવા પીવાનું ખાવા। એક એવું હાઇલેક્સ ની અંદર 1 BHK ઘર 6x5 નો મને બેડ લાગે છે, આરામથી બેસી શકો છો। સુતા સુતા અહીંથી આપણે નજારાનો આનંદ લઈ। ફ્રીજ છે મિત્રો, અત્યારે જ્યાં આપણે આવ્યા છીએ ઓડિશાની અંદર હરિકોણ ઘાટમાં, ત્યાં બેકવોટર પાસે આપણે મેળો લાગ્યો છે। મેળો મતલબ ત્યાં મોટી મોટી એવી કેમ્પર વાન આવી છે, તો એક એવી જ કેમ્પર વાનની આજે તમને હું વિઝિટ કરાવવા જઈ રહ્યો છે। જે ગાડી છે હાઇલેક્સ। હા મિત્રો, હાઇલેક્સ ની અંદર 1 BHK નું આખું ઘર બનાવ્યું છે। તો ચાલો આજે આપણે એક કારને નિહાળીએ। તો મિત્રો, આ એમનું ઘર છે અને આ એમની સીડી છે। તો હા ચાલો હવે આપણે એમના ઘરની અંદર જઈએ। જો આ ચાલો ચપ્પલ બહાર ઉતારી લીધા છે અને હવે આપણે એમના ઘરની અંદર જઈએ। ઓકે, તો સૌથી પહેલા થોડુંક નીચે થઈ અને જવું પડશે। આ એમનું ઘર છે, કિચન છે, સારું એવું કિચન છે અને સિંગલ બર્નર અહીંયા એમને ચૂલો લગાડેલો છે, LPG છે, આ એમનો ચૂલો છે। આજે જો કુકિંગમાં પણ કેવું મસ્તનું જમવાનું બનાવે છે। અને આ એમનો આખું ડ્રોર છે બધા। આ જો આ એક ડ્રોર જેમાં બધો સામાન છે, આ એમનો બીજો ડ્રોર છે એમાં પણ સામાન છે, પછી આ ત્રીજો ડ્રોર છે આમાં પણ સામાન છે, પછી હજી એક ડ્રોર છે। મતલબ આમાં સામાન રાખવાની કોઈ જ તમારે જગ્યા ઓછી જ નથી પડવાની। તમે જોવો ખાલી કપડા, બધા કપડા રહી જશે। અને અહીંયા પણ કપડા છે અને હજી નીચે હજી એક છે। આહા, મતલબ ફૂલ સ્ટોરેજમાં કોઈ જગ્યા નથી। આજે ટર્બો લખ્યું છે તેમનું વોશરૂમ છે। હવે તો આરામથી વોશરૂમની પણ સુવિધા છે। અહીંયા ટોટલી એમની પાણીની બોટલ છે, પાણીની વ્યવસ્થા છે, એ બધી આમાં આવી જાય છે। અહીંયા હજી એમનું બોક્સ છે, મતલબ સ્ટોરેજની તો તમે જોવ તો ખરી, સ્ટોરેજની તો કોઈ મતલબ એક જગ્યા પણ ખાલી નહીં રહે એટલી સ્ટોરેજ એમની પાસે છે। હા, હજી અહીંયા પણ સ્ટોરેજ છે, અહીંયા ખાલી બોક્સ છે, એમની ગેંડી છે જેમાં વાસણ આરામથી ધોવાઈ જાય છે। અને બાકી અહીંયા સોફા છે, બે સોફા, અને અહીંયા આ છે એમનું ડાઇનિંગ ટેબલ। આ રીતે આમ કરશે એટલે આખું ડાઇનિંગ ટેબલ થઈ ગયું। તો આરામથી આપણે અહીંથી બેસી જાય, દેખો આમ તમે બેસી આરામથી ખાવા પીવાનું ખાઓ બધું। આ એક એવું હાઇલેક્સ ની અંદર 1 BHK ઘર થઈ જાય। ઓકે, અને હવે આપણે આને બંધ કરી દઈ અને પછી તમને હું દેખાડવા જઈશ ઉપર। સુવા માટેની વાત કરીએ તો સુવા માટેની વાત કરીએ તો અહીંથી તમે જોશો તો આ આખો તમે બેડ જો 6x5 નો મને બેડ લાગે છે। અને બેડમાં પણ કેવી સુવિધા છે, તમે આરામથી ઉપર જાઓ અને જો આ વિન્ડો છે એમની, તો વિન્ડોમાં જઈ અને આરામથી તમે અહીંયા સુતા સુતા, આહા, અહીંયા સુતા સુતા તમે નજારાના આનંદ લ્યો। અને અહીંયા પણ તમે આરામથી બેસી શકો છો। હવે તો આરામથી બેસો, અહીંથી સુતા સુતા અહીંથી આપણે નજારાનો આનંદ લઈ। તમે જો અહીંથી જ આપણે આરામથી આખા બધા પહાડ ને બધું દેખાય છે। અહીંયા બે પંખા લગાડેલા છે, અહીંયા પણ વિન્ડો છે, અહીંયા પણ વિન્ડો છે, મતલબ અને ત્યાં એમના વાસણ ને બધું રહી જાય એમના માટે રાખેલું છે। ઉપર અહીંયા એક્ઝોસ્ટ ફેન રાખેલો છે, અહીંયા એમને ટેબ્લેટ ને એવું બધું રહી જાય જેથી આરામથી ટીવી નો આનંદ લઈ શકે। અને હું તમને કઈક વ્યૂ દેખાડું, કઈક
આ કારની અંદર સુવાની ને એને તો મજા જ કંઈક અલગ છે, કેમ કે જે રીતનું આખું, અને સૌથી મોટી આ જે છે ને એ આખું હાઇડ્રો ઉપર અટકેલું છે, મતલબ આ આખું ઊંચું પણ થાય અને નીચે પણ આવી જાય, જેથી કાર ચલાવવાની જે મજા છે એ કોઈથી આપણી બગડે નહીં. નકર ઘણા સેટઅપ પર કેટલા છે, ઊંચા એટલા હોય જેથી કરી કાર ચલાવવામાં પણ ઘણો વખત ઇસ્યુ પડતો હોય છે. તો ચાલો હવે તમને આપણે આગળ આમાં શું શું છે એ પણ વસ્તુ દેખાય. તો લાઇટ માટે પણ અહીંયા એમને બોર્ડ રાખેલું છે, એમાં બધું શૂટિંગ થઈ જાય. અહીંયા એમને લાઇટિંગ છે, શીશા છે, ગેંડી છે, મતલબ જે આપણે ઘરમાં જોઈ એ બધી જ વસ્તુ આમાં અવેલેબલ છે. અને વ્યૂ માટે જે એમને વિન્ડો રાખેલી છે, અને મોસ્કીટો માટે પણ જેથી કરી મચ્છર ને એવું ના આવે તો એ પણ સારી એવી સુવિધા છે. અને બેડ, તો બેડની વાત કરીએ તો તમે આટલો બેડ તો જોયો જ, પણ તમને એમ લાગે કે ના મારે હજી મોટો બેડ કરવો છે, તો આ આખું એમને પાર્ટીશન રાખ્યું છે. આ રીતે મોટું આટલા કરશે એટલે હજી કિંગ સાઇઝ મોટો બેડ થઈ જશે. તો હજી આમાં પૂરી વાત નથી, હજી પણ આમાં ઘણું ઘણું છે. 1 BHK માં જે ઘરમાં રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ હવે શું બાકી છે એ જોઈએ. તો ફાયર સેફટીની પણ એટલી જ અહીંયા ધ્યાન રાખેલું છે ને હાઇડ્રો લગાવેલા છે, મતલબ આ છે ને આપણે જેમ ગાડીમાં આપણે ડેકી ખોલી અને ઉપર હોય તો એ જ રીતે આખું નીચે આવી જાય ને તો આ ગાડીની હારોહાર મસ્તની ગાડી થઈ જાય, જેથી કરીને ચાલવામાં કોઈ ઇસ્યુ ના પડે. આમાં જો એમનું વોશરૂમનું તમને દેખાડ્યું સેટિંગ, તમે એમનું કિચનનું જોયું, એમની સુવા માટેનો બેડ જોઈ લીધો. તો હવે આવે ઇલેક્ટ્રિસિટી, કેમ કે આપણે આને ઘર કહી છીએ તો ઘર માટે ઇલેક્ટ્રિસિટી ક્યાંથી આવે, તો ચાલો એ પણ આપણે બતાવીએ. તો આ એમનો ખોલીએ આપણે ગેટ, દરવાજો ખુલ્લો, અને આ એમનું ડેલ્ટા 2 એટલે કે આ એમનું પાવર સ્ટેશન છે. આમાંથી એમને 2 આખા પાવર સ્ટેશન છે, અને આ પાવર સ્ટેશન થી એમનું ફ્રીજ ચાલશે, એમના એસી ચાલશે, આ બધો સામાન અહીંયા. આમ તો એમને 2 વ્યક્તિ બેસી શકે એમને આખું એડજસ્ટ કરીને અહીંયા પાવર સ્ટેશન લગાડ્યું છે. અને એની સિવાય પણ ઘણો સામાન આવી જાય છે, કેમ કે ટોટલ 1 2 3 4 5 સીટર આરામથી આમાં બેસી અને ટ્રાવેલ કરી શકે. પણ અત્યારે એમને એટલો જ સામાન રખાયેલો છે, તો તમે જોઈ શકો છો આખું આ રીતનું એમનું છે. અને ઘણો નાનો મોટો જે કારમાં સામાન આવે એ રીતે અહીંયા તો એ સામાન રાખે જ છે. પાછળ તમે જો એમને આખી એવી રીતે છાંયડો બનાવી નાખ્યો છે, જેથી કરીને તડકો આવે ને તો આરામથી એ બેસી શકે. અને આરામથી જે નજારા છે, જેમ અત્યારે તમે જો કે મારી પાસે પહાડ છે, તો એ પહાડના નજારાનો આનંદ એ આરામથી લઈ શકીએ છીએ. લાંબી જર્ની કરવી હોય તો તમારે જરૂર પડે છે એક્સ્ટ્રા ડીઝલ, એક્સ્ટ્રા પેટ્રોલ, મતલબ ક્યાંય પણ તમારી ગાડી અટકી તો તમે શું કરવું, તો એમના માટે એમને જેરીકેન આ રાખ્યા છે. એટલે કે આ એક એવું પેટ્રોલ ડીઝલનું સ્ટોરેજ છે, ક્યાંય પણ તમે જાઓ તો 20 લીટર જેટલું આમાં ડીઝલ આરામથી આવી જાય, પેટ્રોલ આરામથી આવી જાય, અને ગાડી ક્યાંય પણ અટકશે નહીં. તો હવે આપણે જોવા જશું આ એનો બીજો નેક્સ્ટ દરવાજો ખુલશે. અને આમાં શું છે, આમાં જોવા જેવી વસ્તુ છે. આ નાના એવા ઘરની અંદર આ નાનું એવું ફ્રીજ તમે જો, આમના એમનું ફ્રીજ છે. આ ફ્રીજ આપણે ઓપન કરી અને જોઈ, જો આમના ફ્રીજની અંદર ટોટલી કેમનું બોટલ ને જે કાંઈ નાનું મોટું રાખવું હોય બધું રહી જાય. આ એમનું ફ્રીજ છે, અને આ ફ્રીજ DC વોલ્ટ એટલે કે કારના પાવર સાથે સાથે ચાલે છે. અને 12 જ વોલ્ટનું આ ફ્રીજ છે, 20 લીટરનું આ આખું ફ્રીજ છે જે 12 વોલ્ટ ઉપર ચાલે. તો હવે આ ગાડી હાઇલેક્સ તો તમને આમ તો ખ્યાલ જ હશે, પણ 4x4 ગાડી હોય છે, ક્યાંય પણ એમની ગાડી રૂકે નહીં એના માટે. અને એકદમ કમ્ફર્ટેબલ સીટ, સ્ટેરિંગ નહીં તો પાવર હોય જ છે, તો બધું આપણું નોર્મલ હોય જ છે. અને ATS એમના ટાયર છે, જેથી કરીને એમને પહાડમાં ક્યાંય પણ જો ઓકે, તો એન્ટી ટાયર છે, જેથી કરીને પહાડમાં ક્યાંય એટલે ક્યાંય પણ ઓફ રોડિંગ કરવામાં પણ પ્રોબ્લેમ ના હોય. બાકી તો આ નામ જ કાફી છે મિત્રો. તો મિત્રો આપણે ગાડી તો આખી જોઈ, પણ આ ગાડી છે કોની, તમે જેમાં જે રીતે આપણા શોર્ટ જોયા, તો મિત્રો ઇન્ડિયા ટુ લંડન, અહીંથી આપણે અમદાવાદ જવું હોય તો પણ વિચારીએ. અને આ ઇન્ડિયા ટુ લંડન જઈને આ ગાડી આવી છે,
તો ચાલો એ શખ્સને આપણે મળીએ જેથી કરીને તમને ખ્યાલ પડે. તો સૌથી પહેલા સંજયજી. ઓકે, તો આપણે સંજયજીને આપણે વ્યવસ્થિત મળીએ અને તમને આખી એમની વાર્તા સંભળાવીએ. અને હવે આ વાર્તા ચાલુ થશે હિન્દીમાં, કેમ કે એ પોતે હિન્દી બોલશે તો જ આપણને મજા આવશે. તો ચાલો આપણે સંજયજીને મળીએ. हाय संजय जी, हेलो, कैसे हो? आई एम गुड। गुड. तो संजय जी, जैसे आपकी कार तो हमने देखी हाईलैक्स है, आपने पूरा चलता फिरता 1 BHK इसमें बना दिया है. तो इस कार में अब तक आप कहाँ कहाँ गए हैं और आपकी मेमोरेबल जो ट्रिप रही है वो कौन सी रही है? इस कार में मैंने बहुत सारे इंडिया में रोड ट्रिप्स किए हैं, लेकिन ये वाला जो सेटअप लगा है जो आप पीछे देख रहे हैं ना, इस सेटअप के बाद ये सेकंड ट्रिप है। तो फर्स्ट ट्रिप मैंने किया था 16 डेज का, जिसमें मैं इसको टेस्ट करने ले गया था। तो दिल्ली से गया मैं सच पास। सच पास सबसे नोटोरियस पास है, क्योंकि उसका रोड, अप्रोच रोड और नीचे उतरने दोनों बहुत टूटा हुआ। तो सच पास किया। सच पास के बाद मैं किश्तवाड़ गया। किश्तवाड़ से फिर मैं सिंथन टॉप किया, वो सेकंड पास था। सिंथन टॉप से नीचे उतर के श्रीनगर गया। श्रीनगर से जोजिला पास क्रॉस करके सोनमर्ग आया। सोनमर्ग से कारगिल गया। फिर कारगिल से मैं जंस्कार गया, वहाँ मैंने पेंसिला पास किया। पेंसिला पास के बाद फिर मैं गया गौनगोरंजन, वहाँ से शिंकुला पास किया। शिंकुला पास से मनाली और फिर दिल्ली। तो 5-6 पास मैंने किए इसका टेस्टिंग करने के लिए। तो 16 डेज लगे। उसके बाद फिर इसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस किए, जो समझ में आया कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर वो सब चेंजेस करने के बाद अभी 19 को मैं अब इधर लेके आया हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। तो अभी भी कुछ चेंजेस समझ में आ रहे हैं। अभी मतलब फाइनल नहीं माना, फाइनल नहीं, अभी भी इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ। और मैं मतलब और मैंने नया सब्सक्राइब किया है, हाँ। आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया है और मैंने देखा है कि आपने ये कार लेके आपने इंडिया टू अब्रॉड यानी कि लंदन गए थे। हाँ, इंडिया से लंदन गया था। उस समय स्ट्रक्चर नहीं था, ओके, ओरिजिनल गाड़ी था। एक ओरिजिनल डाला था, डाले के ऊपर एक कवर लगा दिया था जिससे सामान में पानी ना जाए, मिट्टी ना जाए। तो ओरिजिनल था। वो करीब 90 डेज का प्रोग्राम था और वो मेरे लिए बहुत ही लर्निंग फेज था, क्योंकि मैं निकला ग्रुप के साथ था। लेकिन इंडिया के बाद हम गए नेपाल, नेपाल के बाद चाइना, चाइना के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद रशिया। तो मिड वे ऑफ कजाकिस्तान मैंने ग्रुप छोड़ दिया। फिर मैं सोलो चला। तो सोलो चलना बहुत बड़ा चैलेंज है, एक कार और एक बंदा, बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। और कितना रिस्की है वो भी बहुत रिस्की है, क्योंकि आपका गाड़ी खराब हो सकता है, पंक्चर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो हर चीज़ आपके लिए, आपको गाड़ी भी चलाना है, आपको होटल भी बुक करना है, आपको सब कुछ करना है, लैंग्वेज बैरियर है, आपको जीपीएस भी देखना है, कभी इंटरनेट भी नहीं आएगा, तो सब कुछ करना है। और मेरे लिए खासकर ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरे को शूट भी करना है, मेरे को एडिट भी करना है, मेरे को अपलोड भी करना है, मेरे को थंबनेल भी बनाना है। और 85 डेज तक मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत होगा तो आपके व्यूअर्स बताएंगे, मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब के इतिहास में किसी ने 85 डेज तक रियल टाइम एवरी डे विदाउट फेल ब्लॉग डाला है। मतलब रात को जो मैं जिस भी कंट्री में होता तो 10 बजे तक जो मैं शूट करता था, देखता था, वो सुबह इंडिया में 8 बजे लोगों ने देखा है विदाउट फेल 85 डेज। मैंने आपकी चैनल को वो कहते हैं ना कि घंट बजा के रखो, नोटिफिकेशन सुबह तुरंत आ जाएगा, सुबह 8 बजे। तो उस समय लोगों का प्यार भी बहुत मिला। उससे मेरे को बड़ा, मतलब हर जगह, सेंट पीटर्सबर्ग में किसी ने मेरे को होस्ट किया, जर्मनी से मेरे को रिक्वेस्ट है कि आप आइए, हम आपको घुमाएंगे। चेक रिपब्लिक में, प्राग में मेरे को किसी ने घुमाया। लंदन में मैं रेखा बहन के साथ रहा, उन्होंने मेरे को सारा घुमाया। ये सब यूट्यूब के कारण हुआ, वो भी रियल टाइम। नहीं तो जितने बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं वो सब शूट करते हैं, फिर वो उनकी टीम करती है, उनकी टीम एडिट करती है, वो कभी डेट और वो कभी अनाउंस नहीं करते। बट ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ गुजरात राजकोट, वहाँ से अहमदाबाद होता है करीबन 225 किलोमीटर। वहाँ तक भी जाना है तो मतलब मेरे पास कोई बैठा और वो मैप देख रहा है तो पहुँच सकूंगा, और आप अकेले ही सब हैंडल कर रहे हैं। हाँ, बीच में फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक इंडिया से एक बंदे ने मेरे साथ ज्वाइन किया, तो मेरे को थोड़ा आराम हो गया था। फिर कुछ दिन बेल्जियम में मेरे दोस्त बने थे, वो कुछ दिन मेरे साथ रहे, लेकिन वो गाड़ी नहीं चलाते थे, ना वो शूट करते थे, ना वो एडिट करते थे,
वो सिर्फ ये था कि साथ में बैठते थे। आपके वीडियो में जब भी देखा ना, तो मैंने एक बात देखी कि आपके वीडियो में सीखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन वाले मेरे वीडियो। वीडियो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री होते हैं। ओ सही मैंने है। उसी समय शूट करना शुरू किया था ना, हाँ, तो उसमें कोई मसाला नहीं होता है, मसाला नहीं। ना कोई बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है, सिंपल सिंपल होता है, दिखा रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। तो उसमें आपको मतलब अगर आपको लंदन जाना है हाँ, तो आपको उसमें 100% सारी 100% इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारे होटल्स, उनके रेट्स, क्या मैंने खाया, उसके लिए कितना पैसा दिया, कब मैंने फ्यूल भरवाया, कितने का मैंने टोल दिया, कहाँ का मैंने टोल दिया, कितना रेट था फ्यूल का, कैसे मैंने वीज़ा लिए, वीज़ा का कितना खर्चा हुआ, एजेंट्स के नाम तक मैंने उसमें बताया। ओ, तो उसमें मतलब सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया। हमारे व्यूअर को तो पता ही है कि मुझे मेरा हम हस्बैंड वाइफ का ड्रीम है कि हम कार लेके इंडिया टू लंदन जाए। ये तो मतलब वंस इन लाइफ टाइम करना चाहिए सबको, हाँ, अगर आपके पास हाँ, समय और पैसा है तो। हाँ, तो इसमें मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबको चाहिए वैसे तो, बट आपको ना मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ आप मैं सारे ब्लॉग्स देखो, एक कागज पेन लेके बैठो हाँ और उसके अंदर सब नोट करते हाँ, चले जाओ। तो और जिस उसके तरह बाद कुछ चाहिए तो मैं आपको हेल्प करूंगा। हाँ, जैसे अभी एक और है, वो कुरुक्षेत्र से एक लड़का इस साल गया ओके, था, मन्नू ऑन द मैप कुछ ऐसे कुछ है उसका ना चैनल, तो उसको उसने भी काफी कुछ मुझसे पूछा। तो आपने जैसे मुझे बताया, ओके, तो मेरे व्यूअर को बताए आपकी चैनल का नाम क्या है, क्योंकि मेरी तरह कितनों का ये ड्रीम है, तो आपकी चैनल का नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम है एडवेंचर विद संजय। एडवेंचर विद संजय को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दो पहले तो, क्योंकि आप मतलब घर के बाहर भी जाना है तो आप एक टेंशन लेके घूमते हैं, एक मतलब क्या कहाँ जाना कहाँ मोड़ने, मतलब हमें पता ही नहीं है, हमें गूगल देवता ने इतना परेशान कर लिया, और ये लंदन तक कार ड्राइव करके आए हैं। तो कई अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन इनके वीडियो में आपको मिलेगी। जब तक मैं ग्रुप के साथ था ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं कुछ सोचता ही नहीं सोच था। रहे वो कॉन्वे चल रहा है, आप चलाते रहो। चलाते रहे, पीछे वो बकरी होटल उन्होंने बुक करना है, हाँ, तो हमको कुछ भी 1% सोचना नहीं था। ओके, लेकिन जैसे मैं अलग हुआ ना, तो एकदम मेरे ऊपर इतने सारे काम आ गए। मेरे को रूट प्लान करना है, मेरे को होटल बुक करना है, मेरे को बॉर्डर्स क्रॉस करने हैं, तो वहाँ पे सारा इमिग्रेशन देखना है, इमिग्रेशन करना है, और कहाँ पे खाना है, हाँ, कहाँ पे डीजल लेना है। और वो भी सिंगल है। हाँ, और फिर उसके ऊपर से शूट करना है, एडिट करना है, अपलोड करना और है। तो बहुत बड़ा चैलेंज मैंने था। अभी लेकिन आपका कार हाँ, देखा, उसमें लिखा है 85 डेज, हाँ, और दूसरा है कंट्री का लिखा है कि कंट्री के नाम लिखे हैं, हाँ। 25,000 किलोमीटर है, सही हाँ है? एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही लगा, हाँ हाँ, क्योंकि गाड़ी मैं रिटर्न में नहीं लेके आया ना, मैंने वो लंदन से शिप कराया था। ओके, तो बॉम्बे में एक पोर्ट है नीवा शिवा, ओके, नीवा वो नीवा वापसी के टाइम, हाँ, तो वहाँ से मेरा करीब चला था गाड़ी 12-13 नवंबर के 2024, और 27 दिसंबर में 2024 में आया। फिर मैं उसको लेके पूरा गुजरात घूमते हुए दिल्ली आया था। दिल्ली आए। तो मैंने सोमनाथ मंदिर भी गया, मैं भेंट द्वारका भी गया, द्वारकाधीश भी गया। आपका एक वो मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक शिव जी का है जो पानी में डूब जाता है, फिर जो हाँ, भावनगर में, हाँ वहाँ भी गया, जहाँ पे भावनगर आपको, में, हाँ, उसका नाम भूल रहा हूँ, उसका मेरे ब्लॉग में है। हाँ, तो गुजरात का भी मेरा सारा ब्लॉग में मैंने कवर किया। सही है, मतलब आपने वहाँ पे भी किया और यहाँ पे आके महादेव जी को भी हाँ, दर्शन फिर किया। वो आपका नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा, वहाँ भी गया था मैं। हाँ, तो मैं सारा, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ महादेव की कृपा है, सही है। तो मैंने कहा सबके दर्शन करके आने। हमारे वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, तो महादेव के नाम से ही होती है। तो मैंने सारे मैंने कैलाश का परिक्रमा किया हुआ है, ओके, मनी महेश किया हुआ है, ओके, फिर आपका किन्नर कैलाश किया हुआ है, किन्नर किन्नर कैलाश। कैलाश का मेरा ब्लॉग भी है, और मनी महेश का भी मेरा ब्लॉग है, और फिर अमरनाथ भी किया हुआ है। बस मेरा श्रीखंड महादेव बचा है। श्रीखंड तो महादेव। श्रीखंड महादेव का ट्रैक हो जाएगा तो मैं फिर ऑफिशियली पंच अभी कैलाशी हो जाऊंगा। लास्ट हम शायद फरवरी में वहां तक गए थे, पर तभी पता चला कि उनका टाइम अलग है। नहीं, वो अगस्त आपका में जुलाई हाँ, जुलाई में जुलाई होता अगस्त है, वैसा कुछ जुलाई में, अगस्त में नहीं, जुलाई में हाँ, होता है, जुलाई। 15 दिन के लिए खुलता है। 15 दिन के लिए, और ट्रेकिंग भी बड़ा ही काफी कठिन उसमें है। हर साल कई लोग मरते हैं। हाँ, हम गए थे ना, तभी हमें भी पता चला। और आपने कितना खर्चा किया
और कम से कम कितना होता है अगर किसी को इंडिया नहीं, टू मैंने सबसे ल- कम खर्चा किया, ओके कम इससे से कम कोई कर नहीं कर सकता। नहीं सकता। ओके तो मेरा खर्चा ज़्यादा आएगा क्योंकि बहुत सारी टाइम में मैं सिंगल था, तो ओके पेट्रोल मेरा पूरा मेरे को ही भरना है। हाँ आपको गाड़ी को वापस शिप करना है, वो भी मेरे को ही करना है। हाँ तो अगर आप 2 लोग होते हैं, लेकिन आप हस्बैंड वाइफ जाओगे तो आपका खर्चा एक ही माना एक ही जाएगा। माना जाएगा। तो आपका खर्चा वही आएगा जो मेरा आया, हाँ क्योंकि होटल में एक रूम में 1 जना रुके या 2 जने रुके, ओके कॉस्टिंग सेम ही आएगी। तो फिर भी कितना खर्चा आपने किया तो मैंने अभी तक ना कभी टोटल नहीं किया, तो ये सवाल जब सब मुझसे पूछते हैं ना, तो मेरा एक ही जवाब होता है। मेरा एक डेडिकेटेड ब्लॉक है, जब मैंने चाइना छोड़ा, ओके तो अप टू लीविंग चाइना बॉर्डर मैंने पूरा कंसोलिडेट किया है। ओके उसमें मैंने पावर पॉइंट में ना पेजेस बना बना के उसमें दिखाए हैं। उसमें दिखाया तो उसमें सारा वीसा का खर्चा और चाइना में मैंने कितना दिया, खाने का, डीजल का, सब कुछ है। उसके बाद नहीं मैं कर पाया, क्योंकि फिर मैं सोलो हो गया, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कंसोलिडेट करके भी डालूं। लेकिन अगर आप वीडियो वाइज देखेंगे तो आपको सब आ जाएगा। तो नहीं, अभी आपको एक बार मेन, आपको जो सबसे बड़ा खर्चा है जो एक बारी में लगता है, वो गाड़ी को शिप करने का है। ओके मतलब वहां से यहाँ तक हाँ, आने में ओके वो कितना लगा वो 3.5 लाख रुपए लगे। 3.5 लाख सिर्फ वहां से हाँ, यहाँ तक गाड़ी पहुँचने लाने में में। लगता है। 2 लाख तो शिपिंग में लग जाता है। ओके बाकी कुछ फीस वगैरह है, कुछ उनकी एक्स्ट्रा मतलब है। वो पॉलिसी भी होती है कि कार डैमेज ना हो ऐसा भी कुछ हाँ, रहता हो। इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है कार का। सही है और फिर एक कारनेट होता है, ओके वो 1,20,000 रुपया उसमें लगता है। ओ, तो ये 2 बड़े खर्चे हैं। आप डीजल का खर्चा मान लो, मोटा-मोटा अगर आप एवरेज करोगे 150 रुपीज़ पर लीटर मान लीजिए। 150 रुपीज हाँ, यूरोप महँगा है। हाँ और 1 लीटर में आप मान लीजिए 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर का हाँ। एवरेज, तो उससे आप कैलकुलेट कर लो। ओके मैं वियर एंड टियर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप मान के चलिए कि आपका 15 रुपए पर किलोमीटर आपका खर्चा आ खर्चा जाएगा। है 15 थोड़ा और कर लो, हाँ तो आप उसको 25,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका खर्चा 3.5 4 लाख तो आपका डीजल का खर्चा हो डीजल जाएगा। का खर्चा हो जाएगा एवरेज होटल का आप मान लो 8 to 10,000 पर डे। 8 to हाँ, 10,000 पर या डे आपका 6,000 से 10,000, जैसे स्विट्जरलैंड में 10,000 में भी कुछ नहीं मिलेगा, ओ तो वहाँ करीब 12,000 रुपये पर डे लगेगा। पर डे हम्म, और होटल का खर्चा जैसे है। लेकिन अगर हम ओवरलैंडिंग कर ले जाएं और ओके गाड़ी में सोए तो फिर ये बचा सकते हैं। बट वो कर सकते हैं क्योंकि ये जैसे वैगन आर के अंदर सोना है ना, वो प्रैक्टिकल है, हाँ लेकिन ये सेटअप खोलना वहाँ अलाउड होगा नहीं होगा हाँ सब। वही वही इंडिया वही में तो हम जहाँ मर्जी कर देते हैं ना, हाँ हाँ वहाँ मैं इसके बाद, क्योंकि मैंने किया नहीं, हाँ लेकिन आपके कैंपर पार्क्स होते हैं, फिर आपको और स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, फिर आप कैंपर पार्क्स में जाके कर सकते हैं वहाँ पे मतलब वो कर सकते हैं, वो उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी कम होगी एज वही कम्पेयर टू टेकिंग ए होटल। टेकिंग तो वहाँ कैंपर पार्क्स हैं जहाँ आपको पानी भी मिलेगा, टॉयलेट भी मिलेगा, सब मिलेगा। क्योंकि वहाँ की हम मैंने रोम में, वीडियो बहुत देखी है रोम का अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे हाँ तो उसमें जहाँ मैं रुका था ना, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ओके तो वो रोम के आउटस्कर्ट्स पे था, तो वो पूरा कैंपर पार्क था। ओके तो वहाँ रूम्स भी थे, तो वहाँ कम से कम मैंने 20 कैंपस खड़ी हुई देखी थी। 20 के हाँ, तो वहाँ पे आपके वॉशिंग मशीन्स भी लगी हुई थी, ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए। हाँ और वहाँ पे रेस्टोरेंट भी था, ग्रोसरी शॉप भी थी, तो सब ओके कुछ था। तो वहाँ हम तो रूम में रुके थे, हाँ लेकिन वहाँ बहुत सारी कैंपस थी। सही तो ऐसे मेरे ख्याल से हर हाँ जगह कैंपर पार्क्स होंगे। मैंने ओके तो एक देखा। तो ये आपने बात कही उससे मुझे एक पॉइंट याद आया तो आप हमारी वीडियो कई लोग देखते हैं ओके तो ऐसा कुछ अगर इंडिया में हो ओके क्योंकि वीडियो सब देखते हैं ऐसा कुछ इंडिया में हो तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो ऐसे किसी को मिले तो ओवरलैंडन के लिए गवर्नमेंट या ऐसी कोई जगह बनाए जिसमें इंडिया में पानी तो ये कल्चर ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको कार की मॉडिफिकेशन ही अलाउ नहीं है, तो ये हाँ सब जो हम करते हैं, हाँ ये सब ऐसे ही चल रहा चल रहा है सही है है सही ना। कभी भी कोई भी आपको तंग कर सकता है, हाँ तो ये नहीं पॉलिसी चेंज करना चाहिए गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट भाई इस टाइप की गाड़ियों क्योंकि को हम मॉडिफिकेशन अलाउ करें। जैसे मुझे पता है इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ होता है टूरिस्ट का टूरिज्म का सबसे इंडिया बड़ा में तो टूरिज्म ना के बराबर है, हाँ बट वो क्योंकि यही है दिस ना इज नॉट ए टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री फॉर हाँ यूरोपियंस। ओ अब मैं यूरोप के कितनी कंट्रीज में गया,
मैं 40 डेज साउथ अमेरिका भी गया। ओके। मैंने वहाँ पे अंटार्कटिका का क्रूज भी किया। ओ तो इंडिया में अगर आप गिनेंगे तो मेरे ख्याल से आपको 1000 लोग भी नहीं मिलेंगे जिन्होंने अंटार्कटिका का क्रूज किया होगा। नहीं, अब क्रूज पे कुल 4 इंडियंस थे 4 ही इंडियन थे। और उसमें 350 लोग थे। तो ओके। सब या तो यूरोपियन से या कुछ जापानीज से या साउथ कोरिया के लोग थे। ओके। इंडियंस तो 4-5 ही लोग थे। तो उनका भी व्लॉग है इसमें? हाँ, अंटार्कटिका आप यहीं घर बैठे देखिए उसके अंदर। अरे सही। अच्छा, मेरे ब्लॉग तो बहुत डिटेल में होते हैं, तो हाँ। इसलिए वो इतने इंटरेस्टिंग भी नहीं होते, कुछ लोगों के लिए बोरिंग भी हो जाते हैं। नहीं, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए घूमने की सही ढंग से, तो इनका चैनल कभी मिस मत तो करना। आप अंटार्कटिका देखो, उसके अंदर हाँ। अर्जेंटीना देखो, उसमें एक अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पे बहुत बड़ा वाटरफॉल है। ओके। जैसे नाइग्रा है ना, उससे हाँ। भी बड़ा है। ओ उसको बोलते हैं इग्याजू फॉल्स। ग्याजू। इग्याजी, ओ इग्याजू, IGAZU। तो ओके। वो बहुत सुंदर फॉल्स है। तो ओके। उसका उसको भी मैंने कवर किया हुआ है उसके अंदर। फिर आप पेरू जाएंगे। पेरू भी एक बहुत ही हाँ, प्राचीन कंट्री है। पता है, हमने तो उसमें वहाँ पे उनका जो कल्चरल कैपिटल है, वैसे तो लीमा है, हाँ। कुस्को है। ओ कुस्को से आप जाते हैं वहाँ पे माचू पिचू, माचू पिचू। अगर आपने सुना हो। नहीं, तो मैं वो पेरू जैसे सुना अपना है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है ना, तो हाँ। माचू पिचू है। ओके। माचू पिचू इंडियंस तो कोई जाते ही नहीं है, ओके। बहुत ही कम जाते हैं। तो वो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा कवर किया। तो आई वॉज लकी, मैं 1 to 1 मेरे पास गाइड था, ओ और फॉर्चुनेटली वो इंग्लिश स्पीकिंग गाइड था, ओके, तो और आप 1 to 1 था। 1 to 1 था। तो उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और मैंने बहुत अच्छा उसको कवर किया। लेकिन यहाँ लोगों को उसको देखने का मज़ा नहीं मजा आएगा। नहीं आएगा। नहीं, तो क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, खंडर देख रहे हैं ना, हाँ, पुराने वो देख रहे हैं, टूटे हुए वो ये जहाँ पे देख रहे हैं। हड़प्पा के हम जैसे लेकिन कच्छ वो में जाए। वो आपका आपके वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। हाँ। तो वहाँ पे इंडियंस नहीं जाते, लेकिन बाहर के बहुत बाहर लोग के जाते बहुत हैं। जाते हैं, क्योंकि उनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हुए, तो इसीलिए। बहुत तो उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। तो हाँ। ये सब चीज़ें ना देखने को मिलती है, मुझे सही लगता है, है। सही है। अगर मैं मोटा मोटा एक कार जो आपने बनाई, ओके, तो उसमें आपने कितना खर्चा किया और किस हिसाब से बनाई कि मैं एक लोग ट्रैवल कर सके, हम 2 लोग नहीं, ये ट्रैवल बेसिकली 3 ट्रेवल कर सकते हैं कंफर्टेबली, 2। कंफर्टेबली 2 हाँ, कर सकते तो हैं। बेस्ट प्रेफरेंस 2 की होती है। ओ, और मेरे पास अगर मेरे फ्रेंड्स और जाते हैं तो मेरे पास जिमनी है, वो भी कैंपर में है। ओके, तो टेम्पर। मैं एक जिमनी भी साथ में लगा देता हूँ। तो जिमनी अच्छी है या ये अच्छी है? अगर मेरे को अकेले ट्रेवल करना है ओके। और मेरे को एक्सट्रीम वेदर्स में जाना है, ओके। तो मैं जिमनी लेके जाऊंगा, जिमनी क्योंकि बेस्ट है। जिमनी में मेरा एक ही सीट है। तो ओके। मेरा परमानेंट बेड बना रहता है। ओके, तो एक एक और तो वो सीट होगी। पेट्रोल है, हाँ। तो उसको मेरे को डीजल जमने का प्रॉब्लम नहीं है। ओके। फिर क्या है, बहुत ठंड होगी तो मैं ओ- हीटर ऑन करके ओके, सो तो सकता हूँ। सो सकते हैं। 2 घंटे हीटर ऑन कर दिया, गाड़ी गर्म हो गई। ओ, फिर सुबह उठेंगे तो जैसे ही देखेंगे फिर हीटर ऑन कर दो, ओ, फिर तो वो कर लो। जैसे हीटर की बात ये है तो आप और AC कर लो अगर आप हाँ, गर्मी में हैं। गर्मी में हम्म। जैसे राजस्थान वगैरह, लेकिन उसमें स्पीति आप में खड़े तो। नहीं हो सकते, उसके अंदर आपको मॉर्निंग काम नहीं कर बट सकते। जैसे अब इसमें खड़े हो ये कर सकते हो, सकते, बट मैं उसमें ब्रश जो कर सकता एडवेंचर हूँ, कर सकते हैं, वो इसमें भी कर सकते हैं। इसमें नहीं भी नहीं, कर। 100% कर हाँ, सकते हैं। तो बस सही। फर्क क्या है कि इसका फुटप्रिंट बड़ा है। तो जहाँ छोटी छोटी सड़कें हैं ना पहाड़ों में, हाँ, वहाँ वहाँ पे दिक्कत हो आपको सकती, मैन्यूवर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ दिक्कत सकती है, आ ज़्यादा सकती, नहीं। ज्यादा नहीं आ। क्योंकि हर गांव में हिमाचल के, उत्तराखंड में बोलेरो तो जाती जाती हाँ, बोलेरो जाती है, है ना, बोलेरो वही योद्धा उनका सब ट्रांसपोर्ट ऑफ मेन मेन ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट तो जहाँ होता है। बोलेरो जाएगी वहाँ हाइलेक्स भी ये जाएगी। एलेक्स जाएगी, मतलब। और अभी लेकिन आपको लेफ्ट राइट काटने में थोड़ा सा ध्यान रखना थोड़ा पड़ेगा, ध्यान। जिमनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार यूज तो थ्रू हो जाए, हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं, ये चलाओ या कोई और तो जब से चलाओ। ये बना है तो मैं जिमनी में कैंपिंग करना छोड़ दिया छोड़ है। दिया है। सही। क्योंकि बट इसके अंदर सब कुछ कर सकता हूँ ना, मेरे को बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। और ये बड़ी अच्छी है कि अगर हम्म, सेफ्टी वाइज भी मैं कहीं पे भी खड़ी करूँ तो मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं। हाँ बारिश हो, धूप हो, हाँ। आराम से बैठ और के या आप, आपको वाइल्ड एनिमल्स का उसका कोई डर नहीं है। डर नहीं रहेगा, तो बड़ा आप ही अंदर से ही सब कुछ फ्रेश होके आराम। मॉर्निंग का भी काम करके, क्योंकि वो भी मेरे पास कॉम्पोजिट टॉयलेट है इसके हाँ, अंदर। मैंने वो भी हाँ हमने टर्बो का देखा, और मैंने देखा कि अंदर से आपने विंडो भी इतनी रखी है, हाँ, बहुत अब तो सब बाहर आराम से से देख व्यू सकते का हैं। हाँ। आनंद लीजिए। आप मतलब अंदर बैठे, कोई नॉइज है, आपको कोई इश्यू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अच्छी लोकेशन पे आप गाड़ी पार्क करो और नदी, समुंदर हम्म। का, पहाड़ का आनंद ले सकते हैं आप। तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा आपकी जो जर्नी आपने बोली,
और मैं सभी व्यूअर को बोलूंगा कि इनकी चैनल एक बार फिर से आपको हमारी व्यूअर को एक बार चैनल का नाम बता दीजिए। एडवेंचर विद संजय। एडवेंचर विद और मैं संजय। बताऊं, जो मेरे मेन सब्सक्राइबर्स में से ना मैक्सिमम गुजरात के। नहीं मैं अभी जिस तरह व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, मैं करीबन 2-3 साल से कर रहा हूँ। तो कई गुजरातियों का एक ख्वाहिश है कि एक तो है गुजरात में पैसे की तो कमी है ही नहीं। ओके, तो पैसे की बात अगर एक और रखे तो सभी का है कि ट्रैवल करना है, बट कैसे करना है ना, वो उनके पास गाइडेंस ही नहीं है। अगर मैं भी रोड की व्यू की इंफॉर्मेशन तो वो चलती है, क्योंकि वो हमारे जो मेरी कार छोटी है, वैगनआर कार है, तो और लोग तो कहते समझो हैं जिमनी से तो बड़ी है। हाँ जिमनी से छोटी कोई गाड़ी नहीं है, नैनो है नहीं बस। जिमनी में, बट जो जिमनी कर सकती है वो वो वैगनआर। फोर और बाय फोर के कारण आप कह सकते हैं, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है ना, हाँ, वैगन आर का ज्यादा है। और मैंने लेने की सोची थी जिमनी, पर जैसे आपने नहीं, बोला बहुत ना छोटी है। बहुत छोटी लग अगर रही है। आपको करना है तो फिर थार रॉक्स ले लीजिए, हाँ था है ना। ना। नहीं मैंने और नहीं तो बहुत कंफर्टेबल करना है, XL6 ले लीजिए मारुति की। बहुत हाँ बढ़िया, मेरे 4 फ्रेंड्स के पास है। XL6 है, बट मेरा एक ही है। हम्म। अभी अगर कार चेंज होगी ना तो ऐसी कार, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ ट्रैवल करते हैं, और आपको भी पता है इंडिया में इस तरह ट्रैवल करना कितना इश्यू होता है। तो हमारी जो एज है, हम यंग है इतने, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वॉशरूम अंदर बने, क्योंकि हम 3 साल में ऐसी जिस जगह पे ट्रैवल किया, तो कई बार रात में ऐसे एनिमल देखे, इस ऐसे एनिमल तो छोड़ो, प्रॉब्लम करते ही नहीं, पर लोग करते हैं। तो करते हैं। हाँ अच्छा, लोग। मेरे को आज तक कोई नहीं मिला हाँ जिसने नहीं, प्रॉब्लम करी हो। हमें हमने हमें कोई प्रॉब्लम नहीं किया, बट बस सभी लोगों का सुना है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई एक ऐसी व्यवस्था हो अंदर फिर तो जो आपके रात पास, को ही मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस हो गया ना बनवा और देखते देखते हाँ, चैनल्स और बनाते हुए। तो सबसे, अगर आपको 4x4 चाहिए तो टाटा योद्धा सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। मैं 10 लाख में दो आपकी गाड़ी आ जाएगी, 15 लाख में आपका सामान बन जाएगा। तो आपका 25 से 30 लाख के बीच में आपका आपकी फर्स्ट कार क्लास बन चलेगा, और जाएगी। 10 साल 15 साल कहीं नहीं जाती है। मैं दो ही सोच रहा हूँ, एक तो योद्धा, और दूसरा मुझे सब मना कर रहा है, पर मैंने देखी ना तो मुझे वो अच्छी लगी। अभी नई आई है विंगर। अब विंगर का ना शायद जो बॉडी है ना वो स्लोपिंग है, तो ओके, आप ऊपर जाके बहुत सारी जगह वेस्ट करेंगे। ऐसा है। अगर हमारे को एकदम ऐसे रेक्टेंगल मिले ना, हाँ तो हमें ऊपर स्टोरेज मिलता है बहुत अच्छा। हाँ वो विंगर ऐसे है, विंगर, हाँ वो सही तो है। इसलिए वो जमती नहीं है, हाँ, जगह बहुत वेस्ट होगी। बहुत जगह वेस्ट हो और जाए। अगर बट कॉस्ट इश्यू नहीं है, हाँ फिर तो हाइलेक्स लेके हाँ, इसका डाला हटा के, अब अब मेरे को महसूस हो रहा है कि हाँ शायद मेरे को डाला हटा के डाला। बनवाना था, लेकिन मेरे प्रॉब्लम मेरे घर में घुसेगी नहीं ओके, पार्किंग में, क्योंकि पार्किंग। दिल्ली में वो स्टिल्ट पार्किंग होती है जिसकी हाँ, हाइट ना 8.5 फीट से ज्यादा नहीं नहीं होती है। कर सकते आप। तो अभी इसकी छत गिर जाती है तो ये बड़ी मुश्किल से घुसती है, नहीं, बड़ी मुश्किल से, इतनी सी फिर भी जगह बचती है। अगर मैं योद्धा भी लूं तो मैं जिस तरह अपना हाइड्रो वाला कराया ना, मैं सेटअप तो ऐसा ही नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, अगर आप टाटा ये तो लेंगे तो फुल टाइम हाई बनाना। नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है फुल टाइम कि हाई, जैसे यहाँ कुछ लोगों हाँ की गाड़ी लगी है जैसे ना, डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र रामदेव, ढांडे की हाँ है। राजेंद्र रांडे की, बट उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि चलाने में उसका मतलब वो होता है ना, वो लेकिन डाटे सर तो बोल रहे हैं मैं तो 120 130 पे भी चला रहा हूँ, उनका और उनकी एक्सपीरियंस, गाड़ी हाँ बहुत मतलब भारी है। हाँ उन्होंने तो आगे बम्पर भी बदल दिया है, 125 किलो का बम्पर हाँ है, विंच लगा हुआ है। उनकी गाड़ी में तो वेट बहुत ज्यादा है मेरी गाड़ी के मुकाबले। वो है, बट फिर तो भी मेरे ख्याल से वो ये बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गाड़ी चला हाँ चुके हैं। चला सकते तो हैं। अगर वो ये और कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और मैं 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चला रहा हूँ या 120 की स्पीड से भी चला रहा हूँ, जिन हाईवेज पे अलाउड है, अलाउड है। जैसे मुंबई एक्सप्रेस वे हो हाँ गया, और वो कह रहे हैं मैं चला रहा हूँ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो फिर हमको उनकी बात को सच मानना हाँ, सच चाहिए। को वो करते हैं ट्रैवल, क्योंकि हमने जैसे देखा। अब मैं भी सोच रहा हूँ ना, हाँ नहीं तो आप कि अब मेरे को लग रहा है हाँ, कि मैं डाला हटा के थोड़ा सा बनाता तो और मजा आ और जाता। मजा आता है। नहीं फिर भी जिस तरह आपने बनाई है, अ, छोटी सी मतलब इस जगह पे छोटी छोटी आपने जगह को कवर किया है। नहीं, मैं जितनी यहाँ पे इस टाइप के कैंपस देख रहा हूँ ना, हाँ पहले मेरे को लग रहा था कि मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा, मैं हाँ आया इधर था, हाँ क्योंकि मैं इतने बड़े ग्रुप में नहीं करता हूँ, मैं तो- सोलो 2-3 गाड़ी से ज़्यादा में नहीं करता हूँ। हाँ
क्योंकि मैं रॉ कैंपिंग करता हूँ। हाँ, यहाँ हमारी पिकनिक चल बस रही है। हम यहाँ भी पिकनिक ऐसे है, यहाँ कैंपिंग नहीं सभी है ये ना, व्यवस्था है यहाँ पे। तो ये पिकनिक है। हाँ तो मैं मेनली आया था देखने के लिए कि नई नई गाड़ियाँ देखूंगा, नया नया सीखूंगा। तो हाँ, सब देखने के बाद मेरे को पता लग रहा है मेरी गाड़ी बेस्ट है। बेस्ट है। नहीं सही, सही में। तो मेरे को नया कुछ सीखने को हाँ, मिला नहीं यहाँ पे। मैं भी यहाँ पे बैठा ना, तो 2-3 गाड़ियाँ ऐसी देखी कि इनकी मैं वीडियो बनाऊं। हम्म। ओके, मैं लिटरली कल आपको मैंने आपको देखा, बट मुझे वो नहीं पता है ये यही संजय जी है। फिर अभी नहाने में हम साथ में हुए, तब पता चल गया कि नहीं इनका वीडियो देखा है, और इतने में हमारी ऐसी बात हो गई। तो संजय जी, आपकी कार और आप दोनों इतने प्यारे हो, और हमें मज़ा भी इतना आया। दोस्तों, आपको अच्छी अच्छी ट्रैवल की इंफॉर्मेशन वाले वीडियो देखने हैं, तो इनकी चैनल को मिस मत करो। सही में इतने बढ़िया इंफॉर्मेशन वाले और आपको वीडियो बनाते हैं। इंटरनेशनल मेनली देखो। हाँ, सब अभी जगह। मैं मॉरिशस होके आया, तो अ, अभी मैं उसके ब्लॉग और डाल रहा अभी कहाँ जाओगे वापस? हूँ। अभी तो यहाँ इ- उड़ीसा में घूमूंगा काफी। नहीं, इंडिया के बाहर अगर अभी मेरा है, नेक्स्ट है डेनमार्क, डेनमार्क। नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन। ओके, फिर 1 महीने से ज्यादा न्यूजीलैंड। ओके। फिर 1 महीने से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ये इंडिया का तो दिखाते ही है, बट उसके क्योंकि साथ इंडिया में, सभी दिखाते हैं हाँ, इंडिया ना। सभी दिखाते हैं। तो इंडिया के बाहर अब्रॉड की सभी जर्नी इनके चैनल में आपको दिखने की मिल जाएगी। ओके, तो हमारे नीचे ही आप देखिए, इनकी चैनल का नाम आपको दिखता ही होगा तुरंत, और हमारी डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएंगी। आप आराम से देख के उनको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के, फॉरेन के वीडियो के इतना ही आनंद लीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड, और आपको नई वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।